Hello children, today I am going to continue our next video from chapter 15 about different gases. In the previous video we talked about composition of air. Nitrogen is a colorless, tasteless and odorless gas. Nitrogen gas is slightly soluble in water. यानी नाइट्रोजन जो है वो थोड़ी बहुत वाटर में घुलनशील होती है. नाइट्रोजन गैस इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन. इसका काम ना तो ब्रीथिंग के लिए होता है ना रेस्पिरेशन. नाइट्रोजन गैस नाइदर बर्न्स इटसेल्फ नॉट सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑल्सो. दैट इज नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट कंब्यूशन. नाइट्रोजन इज ए वेरी unreactive gas. In this respect, nitrogen is just a opposite of oxygen. Nitrogen gas present in the air is important for all the living things. All the living things need nitrogen compounds for their growth. The plant use nitrogen gas of air to make proteins, and these proteins are used by the plants for their own growth as well as for the growth of human beings and to other animals. Thus the nitrogen is needed by plants to make protein. यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है वो ठीक अपोजिट ऑक्सीजन के अपोजिट होते हैं और इसका इस्तेमाल पौधे प्रोटीन बनाने में करते हैं और पौधों से लिविंग बींग्स एनिमल्स इस नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं. देन नेक्स्ट, ऑक्सीजन. You know very well, oxygen is colorless, tasteless and odorless gas. Oxygen gas is slightly soluble in water. ऑक्सीजन भी पानी में घुलनशील है. ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. वी कैन लिव फॉर सेवरल डेज विदाउट फूड एंड वाटर. यानी हम बिना भोजन किए पानी पिए हम कई दिनों तक रह सकते हैं, बट वी कैनॉट लिव फॉर अ मिनट ऑल्सो without oxygen. So the oxygen present in the air is important for all the living things, and all the living things need oxygen of air for breathing. Oxygen gas does not burn itself, but it allows other things to burn in it. So oxygen is a supporter of burning. यानी कि ऑक्सीजन जो होता है बर्निंग का सपोर्टर होता है. विदाउट ऑक्सीजन वी कैनॉट बर्न एनीथिंग. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कंब्यूशन ऑफ फ्यूल्स. यानी कि फ्यूल्स को जलाने में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, सच एज वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी एक्सेट्रा. ऑक्सीजन सपोर्ट्स द लाइफ एंड कंब्यूशन. यानी ऑक्सीजन जो है दो प्रकार से मदद करता है. एक तो हमारी लाइफ को यानी कि ब्रीथिंग करने के लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, और दूसरा कंब्यूशन के लिए यानी फॉर इट इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. Oxygen is necessary for all the living things. How we can say? All the living organisms breathe air to remain alive. So, air is necessary to sustain the life of all the living beings, men, animals and plants. When a person breathes in air, it is actually the oxygen present in the air which utilize the process of respiration. So, we can also say that oxygen is necessary for breathing. Thus, whether we say the air is necessary for breathing or oxygen is necessary for breathing, it means the same thing. यानी इस प्रकार हम कहते हैं कि हवा हमारे सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. All the living things, animals and plants, use the oxygen of air for respiration. During the respiration, oxygen breaks down the food to give carbon dioxide, water and energy. यानी कि जब भोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, यानी जो भोजन हम करते हैं और जब हम सांस लेते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हाट हैपन्स? During respiration, oxygen breaks down the food and it converts into carbon dioxide, energy and water. This energy sustains the life of all the animals and plants, and the animals and plants living on the land take oxygen required for breathing from the air around them. But the animals and plants living in water take the oxygen required for breathing from the air dissolved in water.
यानी कि जो लैंड पे रहने वाले जानवर हैं या फिर लिविंग बींग्स हैं, वो हवा से प्रेजेंट ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। लेकिन बट व्हाट अबाउट द एक्वाटिक एनिमल्स? एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? दे टेक ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व इन वाटर, यानी पानी में जो ऑक्सीजन घुलनशील होता है वो उससे सांस लेते हैं। Under ordinary condition, we use the air around us for breathing purpose, but under special situation, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग पर्पस। यानी कि ऐसे तो हम ऑक्सीजन मतलब कि ऐसे नॉर्मली हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं फॉर ब्रीथिंग, बट स्पेशल सिचुएशन जैसे कि हमें माउंटेन पे जाना है, फिर वी हैव टू गो इनसाइड द वाटर, डीप इनसाइड द वाटर, तो इन दैट केस वी कैरी गैस सिलेंडर्स। थ्री सच स्पेशल सिचुएशन आर पेशेंट लिविंग हैविंग ब्रीथिंग, यानी कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, देन इन दैट केस ऑल्सो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है। एंड देन नेक्स्ट, माउंटेनियर क्लाइंबिंग ऑन द माउंट, बिकॉज जितने हम लोग हाई चलते जाएंगे एयर की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है, और एट द टॉप क्या होता है, एयर की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है कि वी कैनॉट ब्रीथ, इवन ब्रीथ। एंड देन डाइवर्स होते हैं जो कि पानी समुद्र के अंदर गोताखोर, इन हिंदी वी कैन से गोताखोर जो होते हैं, वो समुद्र के अंदर नीचे स्टडी फॉर द स्टडी ऑफ सी जाते हैं, या फिर इवन कोई भी अगर अदर वर्क होता है, लेकिन दे हैव टू कैरी द ऑक्सीजन बिकॉज इन द डीप सी देर इज नो ऑक्सीजन। The components of air which is utilized in breathing is oxygen, and the patients suffering from disease like asthma have sometimes difficulty in breathing problems in air because only 1/5 part of the air is oxygen. Similarly, a patient undergo a major surgical operation. In that case also we take oxygen. So oxygen gas is given to patient in hospital who have difficulties in breathing properly. All those hospital have cylinder filled with oxygen gas for such patients. यानी कि अगर कोई बीमार व्यक्ति होता है, यू कैन सी इन द फिगर, अगर कोई पेशेंट अस्थमा का यानी कि रेस्पिरेटरी डिसीज से प्रभावित होता है, तो इन दैट केस दे हैव गिवन ऑक्सीजन सिलेंडर टू ब्रीथ, क्योंकि वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। माउंटेनियर्स कैरी, दे ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर बिकॉज जैसे ही वो हाई माउंटेन पे जाएंगे तो वहाँ पे हवा की मात्रा क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है। और जो डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र की तली में जाते हैं, दे ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। तो इन थ्री स्पेशल सिचुएशंस ह्यूमन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। The next, the person who climbs the high mountain called mountaineers, the mountaineer carry oxygen gas cylinder with them while climbing high mountains because at a high altitude of mountains the air is very thin। यानी कि जैसे ही हम ऊंचाइयों पे जाते हैं तो हवा की जो मात्रा है, हवा का जो लेवल है, काफ़ी थिन हो जाता है, and so that the air at the high altitude contains very little oxygen, due to which it becomes very difficult to breathe properly. So the mountaineer use the oxygen gas contained in the cylinder for breathing properly. When divers go deep into the sea, same condition is that they carry oxygen gas cylinder with them. The oxygen gas is used by the divers breathing while they are underwater because there is no free oxygen in the sea water, because समुद्र के पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो समुद्र के पानी में डिजॉल्व होता है, और वी कैनॉट हैव ऑर्गन्स लाइक फिश, यानी कि जैसे कि फिश के पास गिल्स होते हैं तो दे कैन ब्रीथ oxygen dissolve in water, but we can't breathe, we have to breathe a free oxygen. This is because there is no free oxygen in the sea water which can be used by the divers for breathing. Please note that the little dissolved oxygen present in sea water cannot be used for breathing by human beings such as a diver, because we cannot have breathing organs like fish and other aquatic animals. Oxygen is necessary for burning.
Why oxygen is necessary for burning? Let us see. The process of burning of a substance is called combustion. यानी किसी भी चीज़ का जलना it called combustion, and air is necessary for burning of a substance. In fact, air is known as a supporter of combustion. इसीलिए हवा को combustion का सपोर्टर कहा जाता है. A substance cannot burn without air. यानी कि कोई भी substance without air नहीं जल सकती है. Now, when a substance burns in the air, it is actually the oxygen present in the air which helps which is used up in the process of burning. यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, बट एक्चुअली हम हवा में से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. द सेम कंडीशन इज़ देयर. जब हम बर्निंग कोई भी चीज़ जलाते हैं तो इट बर्न्स. अगर हवा खुली हवा में अगर हम जलाते हैं तो वो जलती है, लेकिन जब हम उसे ढक देंगे या फिर किसी चीज़ से कंटेनर से ढक देंगे तो वो नहीं जलती है, बिकॉज एयर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है दैट सपोर्ट्स द बर्निंग. ऑल द एयर डू नॉट सपोर्ट, ओनली ऑक्सीजन. दिस इज़ बिकॉज द फ्रेश एयर इज़ रिच इन ऑक्सीजन. खुली हवा में इसलिए चीज़ें और तेज़ी से जलती है बिकॉज उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है और फ्रेश होती है, तो सो it burns properly. We will now describe a simple activity to show that air is necessary for burning for things. यानी कि एक एक्टिविटी है, आप ये छोटे क्लासेस में भी आपने इसे देखा है. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. टेक 2 कैंडल्स. यानी कि 2 मोमबत्ती हमने ली और दोनों को हमने लिट कर दिया, यानी कि जला दिया. एक मोमबत्ती के ऊपर हमने एक ग्लास का टम्बलर उल्टा करके अपसाइड डाउन करके रख दिया, इन्वर्टेड गैस जार. सो आफ्टर फ्यू मिनट्स हम क्या देखते हैं कि जो कैंडल बाहर हमने जलाई है वो कि इट कीप्स ऑन बर्निंग, एंड द कैंडल इनसाइड द इन्वर्टेड जार, जिसके ऊपर हमने एक जार औंधा दिया है यानी कि इन्वर्ट करके अपसाइड डाउन करके रखा हुआ है, वो कैंडल जो होता है इट स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर फ्यू मिनट्स. यानी कि कुछ देर के बाद वो फ्यू मिनट्स और सेकंड्स के बाद वो बंद हो जाती है. तो आखिर रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न इज़ दैट कि मोमबत्ती के ऊपर जब हमने एक कवर लगा दिया तो इसके अंदर जो प्रेजेंट एयर थी और हवा के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन थी, वो कैंडल जब तक जली कि उसके अंदर जब तक कि ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, और जैसे ही उस ऑक्सीजन को उसने बर्निंग करने के लिए वापस ले लिया तो दैट देयर इज़ नो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज़ कैप्चर्ड इन द ग्लास और अ जार, है ना. तो जब हमने उसके अंदर जो ये बंद कर दिया है तो इसके अंदर जो हवा थी, इसके अंदर की ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में सपोर्ट हो गई, यानी कि बर्न जल गई. अब इसमें कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, सो द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट कि एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग और कंब्यूशन. Then next, and in the absence of oxygen of air, the coal stops burning. The coal fire gets exhaust. Similarly, when a burning candle is covered with a gas jar, the supply of oxygen of a fresh air is cut off and it stops burning. Same thing is that I have explained you now. When the burning clothes of a person are covered with a woolen blanket. आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो इन दैट केस लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मोटा कंबल उसके ऊपर डाल देते हैं. और आपने देखा होगा कि जब हम उसके ऊपर मोटा कंबल डालते हैं तो गैस जो जलने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, इट स्टॉप्स बर्निंग. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? व्हेन द बर्निंग क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन आर कवर्ड विथ अ वुलन ब्लैंकेट, देन द सप्लाई ऑफ अ फ्रेश एयर टू द बर्निंग क्लोथ्स इज कट ऑफ. यानी कि जब हमने किसी व्यक्ति के जलते हुए कपड़ों पे कंबल डाल दिया तो बाहर का जो एयर है अब उसके अंदर वो नहीं जा रही है, लेकिन जो उसके अंदर जो प्रेजेंट एयर थी वो क्या हो गई, वो तो बर्न हो चुकी है. सो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि आग जो है वो बुझ जाती है. टू द बर्निंग क्लोथ्स इज कट ऑफ एंड हेंस द क्लोथ स्टॉप्स बर्निंग एंड द फायर गेट एग्जॉस्ट. यानी कि फायर जो आग जो है वो बुझ जाती है. इन ऑल द अबाउ केसेस व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर टू अ बर्निंग सब्सटेंस इज कट ऑफ. यानी कि इन सारे एक्टिविटी से ये शो ऑफ होता है
कि अगर कोई भी जलती हुई चीज़ में अगर बाहर की जो फ्रेश एयर है उसे हम कट ऑफ कर देते हैं, इवन एनी प्रोसेस यानी किसी भी प्रोसेस से हम उसे कट ऑफ कर देते हैं, देन द थिंग इज द सब्सटेंस इज स्टॉप बर्निंग, यानी कि वो जो भी चीज़ें जल रही है वो जलना बंद हो जाती है. So the process of burning also stops. Thus the presence of oxygen is necessary for combustion to take place. तो this activity shows that कि जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. So children, I am going to close this video. In the next video, I will teach you about carbon dioxide, water vapor and dust particles. These are the other gases and substance present in the air. Thank you for watching.